Assalamu alaikum everyone. Dear students, today we will see how to factorize quadratic trinomial. Here see in your practice set 3.6, the question is find the factors of the polynomials given below, and here one polynomial is given which is in the quadratic form. Quadratic trinomial it is. One type of quadratic trinomial. Why it is called as quadratic? Because of the highest power 2, it is a quadratic polynomial, and because of 3 terms it is called as trinomial. Okay, so it is one of the quadratic polynomial we can say, or quadratic trinomial. So in this quadratic trinomial, see how to factorize it. Very simple method is there. So first we are taking the product. To factorize, the product of first term coefficient and the last term is taken. What is the first term coefficient? 2, and the last term is -1. Last term means the third term. Okay. Now we are writing here 2 multiplied by -1. Against of that polynomial you have to write. Okay. So what is the product of this? 2 into -1, -2. Correct? -2. Now we will factorize this -2 so as to get the difference of that two factors. It should be the middle term. What I said? Now we have to factorize this -2. Means we have to take two different factors of this -2 in such a way that its difference should be the middle term. What is the middle term coefficient here? 1. Correct? So here 1 is the middle term coefficient, and the difference of two different factors of this product, it should be 1. The difference of two different factors of this product, it should be 1. Okay. So which are that two factors are? Which are the two factors of this -2? Tell me. -2, 1s are -2. Correct? So here, so the factors are 2 1s are 2, 2 1s are 2. Correct? Now we have to think about which sign we should be given to these factors. Here, as we are taking the difference of these two factors, so we have to give here two different sign. Different sign for this both the factor, means one should have positive sign and other should have negative sign. Okay? But how? Means the biggest number should have positive or the smallest number should have positive. This also we have to think. So see here, the middle term is positive. Middle term, the difference we have to take, and that difference should be the coefficient of the middle term. So here middle term coefficient is 1, and that one is +1. So as to get the +1, we should give positive sign for the bigger number 2 and negative sign for the smaller number 1. क्या बोली? समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को प्रोडक्ट लेना है. कौन सा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 का और -1 का. हो गया? सो द प्रोडक्ट इज -2. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. अभी ये जो प्रोडक्ट है ना, उसके हम लोग को दो फैक्टर्स लेने हैं. हमें दो फैक्टर्स लेने हैं, और वो दो फैक्टर्स लेते वक्त एक बात ध्यान में रखो, अगर यहाँ लास्ट टर्म निगेटिव हुई तो फैक्टर्स का डिफरेंस ये मिडल टर्म आना चाहिए, और अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव हुई तो वो फैक्टर्स की सम ये मिडल टर्म आना चाहिए. यहाँ पे लास्ट टर्म निगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो फैक्टर्स का डिफरेंस ले रहे हैं, और वो डिफरेंस कितना आना चाहिए, जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है उतना वो दो फैक्टर्स का डिफरेंस आना चाहिए. अंडरस्टूड ना? अभी यहाँ पे +2 और -1 अगर हम लोग ने लिए तो ये दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गए, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1, एंड दैट 1 इज द +1 बिकॉज वी हैव सब्ट्रैक्टेड -1 फ्रॉम +2 एंड 2 इज द बिगेस्ट नंबर एंड इट्स साइन इज पॉजिटिव. ओके, समझ में आया यहाँ तक? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप सी व्हाट वी विल डू. These factors now we will substitute
इन प्लेस ऑफ द मिडल टर्म, मतलब यहाँ मिडल टर्म निकाल के उसकी जगह पे ये फैक्टर्स लिखने हैं। अब ये फैक्टर्स कैसे लिखने हैं देखो, विथ वेरिएबल वी हैव टू राइट, ओके। सो हियर यू राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज, दैट इज द 2x स्क्वायर, और मिडल टर्म की जगह पे हम लोग ये फैक्टर सब्सटीट्यूट करेंगे या फिर मिडल टर्म रिप्लेस करेंगे ये दो फैक्टर्स से। जैसे कि एक आएगा +2x, क्योंकि 2 का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे +2x, और -1 मतलब -x, 1x, अंडरस्टूड। और उसके बाद लास्ट टर्म आएगा -1। अभी यहाँ हम लोग ने ये +x टोटली रिप्लेस किया है, उसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लिए हैं। एक है +2x और दूसरा है -x, ओके। यहाँ पे -1 मतलब 1 ये x का कोएफिशिएंट रहता है, लेकिन 1 हम लोग कोएफिशिएंट, इट इज़ नॉट विजिबल, वी आर नॉट राइटिंग 1 एज अ कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म बिकॉज इट इज़ इनविजिबल टू अस, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे -x मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, -1, विच इज़ द सेकेंड फैक्टर। उसके बाद लास्ट में जो टर्म रहती है वो लिखना है। समझ में आया तक? अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में देखो, फर्स्ट ग्रुप में ये दो फैक्टर्स आएंगे, पहले दो टर्म्स, और सेकेंड ग्रुप में ये लास्ट के दो टर्म्स आएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो फर्स्ट ग्रुप हम लोग ने बनाया है, द ग्रुप दैट वी हैव मेड हियर, फ्रॉम दिस फर्स्ट ग्रुप वी आर टेकिंग द कॉमन फैक्टर्स। अभी यहाँ इसमें से कॉमन क्या आएगा, नंबर में से 2 आएगा, एंड द वेरिएबल में से x स्क्वायर और x में से x आएगा, ओके। तो अंदर क्या बचेगा देखो, यहाँ पे एक x बचता है, उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन, उसके बाद ये 2x एंटायरली हम लोग ने बाहर लिए ना, पूरा का पूरा बाहर लिए, तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 तो रहेगा ना, सो 1 मस्ट बी देर, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप सी, फ्रॉम दिस -x एंड -1 कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तब 1 तो रहता ही रहता है, so 1 must be there. So this sign you have to consider here. While taking the factors, common factors of the second group, you should take the sign of the first term of that सेकेंड ग्रुप, ओके। तो ये सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट टर्म कौन सा है, x है, और उसकी साइन क्या है, माइनस है। इसलिए कॉमन फैक्टर्स लेते वक्त ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर तुम लोग लोगे एज अ कॉमन फैक्टर, उसके साथ इसकी साइन लेनी है, ओके। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहा तो निगेटिव। समझ में आया? उसके बाद अभी इसमें से कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, मतलब हम लोग 1 लेंगे, बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ओके। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचता है देखो, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे हम लोग ने माइनस बाहर लिए हैं, तो अंदर क्या बचेगा, +1। वाई +1, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू +1 -1, ओके। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आना चाहिए, मतलब हम लोग ने इसमें से कॉमन 1 लिए, और ये साइन बाहर लिए तो अंदर पॉजिटिव बचेंगी, और ये साइन बाहर लिए तो उसका पॉजिटिव अंदर बचेगा, बिकॉज प्लस माइनस, ओके। और ऑलवेज देखो, जो ब्रैकेट पहला आता है वही दूसरा आता है, तो ये भी बात थोड़ी ध्यान में रखो। सो हियर आउट ऑफ दिस 2 सिमिलर ब्रैकेट वी आर राइटिंग ओनली 1 विच इज x + 1, और सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा 2x - 1, अंडरस्टूड। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया? उर्दू में या फिर हिंदी में मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कंसेप्ट इट इज़ देयर इन द 10th स्टैंडर्ड, एंड फॉर दिस कंसेप्ट देर आर टोटल 20 marks with option for that quadratic equation, and this concept is most important in that lesson. तो ये समझना ही चाहिए हर एक को, ओके। इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन की हूँ। Here second polynomial, quadratic polynomial, is 3x square plus 7x plus 2. Here see the last term 2 is positive. So in this case we have to find out the factors of that product, which should be we should give the sum, that is the middle term, okay. So here we have to take two factors for which we can get the sum middle term, that is the 7, okay. Now we are taking the product of first coefficient
coefficient of first term which is 3 and the last term. So say 3 multiplied by 2, then 3 2s are 6. Correct? Now we'll find the factors of this product 6 in such a way that that factors sum should be the middle term which is 7. So which are the factors of the 6 whose sum is 7? Tell me. 6 ones are 6. See, if you are taking 6 and 1, 6 ones are 6. These two are the factors of 6 and the sum is 7. Understood? So for taking the sum, these factors should have similar sign. But who is that similar sign? The sign of the middle term. What is sign of the middle term? Positive. So here both the factors should have sign of the middle term for taking the sum. And for taking the difference, you should give two different sign. But for biggest number, you should give the sign of the middle term. But here in this case, as we are taking the sum of that two factors, मतलब हम लोग को दोनों की सम लेनी है और ये सम क्या होनी चाहिए? ये सम मिडल टर्म होनी चाहिए और द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म होनी चाहिए एंड दैट इज द 7. तो यहाँ पे 6 और 1, 6 + 1 कितने हुए? 7. एंड हियर फॉर टेकिंग द सम, मतलब सम लेने के लिए दोनों को सिमिलर साइन देनी इम्पोर्टेंट है. बट विच दैट सिमिलर साइन? द साइन ऑफ द मिडल टर्म. जो साइन मिडल टर्म को होगी वही सेम साइन दोनों को भी हम लोग देंगे फॉर टेकिंग द सम. बिकॉज ऑफ +6 एंड +1 यू कैन गेट हियर +7. नाउ हियर इन प्लेस ऑफ द मिडल टर्म, अभी यहाँ पे हम लोग मिडल टर्म रिप्लेस करेंगे किससे? ये दो फैक्टर्स से. ओके, सो राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज 3x². उसके बाद ये जो मिडल टर्म है वो हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं ये फैक्टर्स से. तो फर्स्ट फैक्टर आएगा विथ वेरिएबल x 6x और सेकेंड फैक्टर आएगा विथ वेरिएबल x 1x. ओके, 1x यहाँ पे 1 है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता. ओके, 1 वहाँ पे है, ऐसे समझ लेंगे हम लोग. उसके बाद लास्ट टर्म लिखेंगे +2. सो राइट +2. नाउ विल मेक द ग्रुप्स. कैसे ग्रुप बनाएंगे? देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आएगा, फर्स्ट 2 टर्म का एक ग्रुप हुआ और लास्ट 2 टर्म का दूसरा ग्रुप हुआ. अभी यहाँ से फर्स्ट ग्रुप में से क्या क्या कॉमन आता है? देखो कॉमन फैक्टर्स यहाँ 3 और 6 में देखो 3 कॉमन है. 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. उसके बाद x² और x में x कॉमन है. उसके बाद अंदर क्या बचता है? देखो यहाँ पे x बचेगा एंड हियर प्लस यहाँ पे 6 से 3 बाहर आया मतलब 2 अंदर बचा. 3 2 जा 6 और x ऑलरेडी बाहर है. सो ब्रैकेट कंप्लीट. Okay, now from this second group again nothing is common means 1 must be there. And here which sign we have to take outside of the bracket? While taking the factors of the second group we should take the sign of the first term of the second group. So what is that sign? Plus. So here 1 must be there. Here nothing is common means 1 must be there. So that's why we have taken here +1 outside the bracket and inside the bracket now x + 2 will remain. Understood? Now from these two similar bracket, which that two similar brackets are x + 2 and x + 2, we are writing only 1. So out of these two similar bracket, only one bracket is written. So write x + 2 only one time. And the terms which are there outside of the bracket, that terms we will put inside of the second bracket. So 3x + 1. So these are the factors of this trinomial, which is 3x² + 7x + 2. Understood?